हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 31 चैप्टर 32 चैप्टर इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSR बाइबल में से। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी संतान बनाने के लिए और हमें सच्चाई के रास्ते दिखाने के लिए। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें झूठ की ताकत से छुड़ाइए और सच्चाई की ताकत से हमें बांधे रखिए और हम सच्चाई की ओर देखते हुए हमारा रास्ता पूरा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 31 चैप्टर। And Moses went and spake these words unto all Israel. हम ड्यूट्रोनॉमी 31 चैप्टर पढ़ रहे हैं किंग्स जेम्स वर्जन में से। And he said unto them, I am 120 years old this day. I can no more go out and come in. Also the Lord hath said, unto me, thou shalt not go over this Jordan. The Lord thy God, he will go over before thee, and he will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them. And Joshua, he shall go over before thee, as the Lord hath said. And the Lord shall do unto them as he did to Sihon and to Og, kings of the Amorites, and unto the land of them whom he destroyed. And the Lord shall give them up before your face, that ye may do unto them according unto all the commandments which I have commanded you. Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, it is there that doeth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of a good courage, for thou must go with us, with these people, unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. And the Lord, it is that doeth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. And Moses wrote this law and delivered it unto the priests, the sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. And Moses commanded them, saying, At the end of every 7 years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles, when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Gather the people together, men and women and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law, and that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God, as long as ye live in the land whither ye go over Jordan to possess it. And the Lord said unto Moses, Behold, thy days approach that thou must die. Call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. And the Lord appeared in the tabernacle in a pillar of a cloud, and the pillar of the clouds stood over the door of the tabernacle. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a warring after the gods of the strangers of the land whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant which I have made with them. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and
I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, are not these evils come upon us, because our God is not among us? And will surely hide my face in that day, and I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought, in that they are turned unto other gods. Now therefore write ye this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, then will they turn unto other gods, and serve them, and provoke me, and break my covenant. And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness, for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed. For I know their imagination which they go about, even now, before I have brought them into the land which I swear. Moses therefore wrote this song the same day, and taught it the children of Israel. And he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, Be strong and of a good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of this law in a book until they were finished, that Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, Take this book of the law, and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be therefore a witness against thee. For I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Lord, and how much more after my death. Gather unto me all the elders of your tribes and your officers, that I may speak these words in their ears, and call heaven and earth to record against them. For I know that after my death ye will utterly corrupt yourselves, and turn aside from the way which I have commanded you, and evil will befall you in the later days, because ye will do evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger through the work of your hands. And Moses spake in the ears of all the congregation of Israel the words of this song until they were ended. ड्यूटोनॉमी 32 चैप्टर हम पढ़ेंगे. Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of thy mouth. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass, because I will publish the name of the Lord. Ascribe ye greatness unto our God, and he is the rock. His work is perfect, for all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is he. They have corrupted themselves, their spot is not the spot of his children. They are a perverse and crooked generation. Do ye thus requite the Lord, O foolish people, and unwise? Is not he thy father that hath brought thee? Hath he not made thee and established thee? Remember the days of old, consider the years of many generations. Ask thy father, and he will shew thee, thy elders, and they will tell thee.
when the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. For the Lord's portion is his people, Jacob is the lot of inheritance. He found him in a desert land and in the waste howling wilderness. He led him about, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields, and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock, butter of Cain, and milk of sheep, with fat of lambs and rams, of the bread of Bashan, and goats, with the fat of kidneys of wheat. And thou didst drink the pure blood of the grape. But Jeshurun waxed fat and kicked. Thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with the fatness. Then he forsook God, which made him, and lightly esteemed the rock of his salvation. They provoked him to jealousy with strange gods, with abominations provoked they him to anger. They sacrificed unto devils, not to God, to gods whom they knew not, to new gods that came newly up, when whom your fathers feared not. न्यूली demons नया नया आते हैं. Of the rock that begat thee, thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee. And when the Lord saw it, he abhorred them, because of the provoking of his sons and of his daughters. And he said, I will hide my face from them, I will see what their end shall be, for they are a very froward generation, children in whom is no faith. They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those which are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains. I will heap mischiefs upon them, I will spend mine arrows upon them. They shall be burnt with hunger, and devoured with burning heat, and with bitter destruction. I will also send the teeth of beasts upon them, with the poison of serpents of the dust. The sword without and terror within shall destroy both the young man and the virgin, the suckling also with the man of grey hairs. I said, I would scatter them into corners of I would make the remembrance of them to cease from among men. Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, Our hand is high, and the Lord hath not done all this. For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in them. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their later end. How should one chase 1,000, and to put 10,000 to flight, except their rock had sold them, and the Lord had shut them up? For their rock is not as of our rock, even our enemies themselves being judged. For their wine is of the wine of Sodom, and of the fields of Gomorrah. Their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter. Their wine is the poison of dragons, and the cruel venom of asps. Is not this laid up in store with me, and sealed up among my treasuries? To me belongeth vengeance and recompense. Their foot shall slide
destroyed in due time. To the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. For the Lord shall judge his people and repent himself for his servants when he seeth that their power is gone and there is none shut up or left. देयर पावर इज गॉन यानी शक्तियाँ चली जाती है. ओके मनुष्य के जितने शक्तियाँ हैं वो निकल जाती है. ओके परमेश्वर वहाँ तक उसका न्याय करता है. ठीक है. And he shall say, where are their gods? Their rock in whom they trusted. Oh my God. Which did eat the fat of their sacrifice and drank the wine of their drink offerings. Let them rise up and help you and be your protection. See now that I, even I am He, and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. कितना पावरफुल हमको परमेश्वर दिया है. देखिए कितना प्रकाशन है ये वचनों के अंदर. For I lift up my hand to heaven and say, I live forever. If I whet my glittering sword and mine hand take hold on judgment, I will render vengeance to mine enemies and will reward them that hate me. I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh, and that with the blood of the slain and of the captives from the beginning of revenges upon the enemy. Rejoice, O ye nations, with his people, for he will avenge the blood of his servants and will render vengeance to his adversaries and will be merciful unto his land and to his people. And Moses came and spake all the words of this song in the ears of the people, he and Hoshea the son of Nun. And he said unto them, set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law, for it is not a vain thing for you, because it is your life, and through this thing ye shall prolong your days in the land whither ye go over Jordan to possess it. And the Lord spake unto Moses that selfsame day, saying, get thee up into this mountain Abarim, and unto Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho, and behold the land of Canaan, which I give unto the children of Israel for a possession, and die in the mount whither thou goest up, and he be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people, because he trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh in the wilderness of Zin, because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel. Yet thou shalt see the land before thee, but thou shalt not go thither unto the land which I give the children of Israel. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस महान वचनों के लिए कि आपने हमें आपकी पहचान दिलाई पिता. थैंक यू फादर गॉड. धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता. थैंक यू जीसस. थैंक यू. आपकी पहचान हमें देने के लिए धन्यवाद करते हैं. नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, हमें माफ़ कीजिए पिता परमेश्वर, जो हमने पिता परमेश्वर कोई भी अलग परमेश्वर भक्ति और विश्वास में पिता अपना मन डाला होगा तो हमको माफ़ कर देना खुदा परमेश्वर. हम आपके अलावा और कोई काम ऐसा ना करें खुदा जो आपका विरोध करता हो. आप पिता परमेश्वर जो हो वही हम करें खुदा. आपको छोड़कर पिता हम कुछ ना करें. नासरी यीशु मसीह के नाम में पापों की माफ़ी मांगते हैं खुदा. हमें माफ़ कर. हर एक पिता परमेश्वर जो पिता हम जानते नहीं जानते हैं ऐसे कोई भी भक्ति हमने कर रखी हो जिसका पिता असर हमारे ऊपर पिता पीछा करता होगा, तो हमको उस भक्ति में से छुड़ा खुदा परमेश्वर. उन शक्तियों में से हमको कंप्लीटली छुड़ा. वो सारी शक्तियाँ कंप्लीटली हमारे ऊपर से हटा दे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर तेरे साथ तेरी भक्ति में लग सके. नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन आमीन. हम हिंदी में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण. लेकिन व्यापारी के हिसाब से वो कहाँ चला था, उसे मालूम था कि ये मोती इतना बेशकीमती है. आमीन 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 बेच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उससे 100 गुना अधिक. आमीन हालेलुया. यीशु मसीह इतना अधिक कीमती है, जो कुछ आपके लिए आप उसके लिए छोड़ रहे हैं,
वो 100 गुना मिलने वाला है। Amen. पतरस ने कहा, पतरस कहता, Thank you, परमेश्वर, Jesus. अब सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो गए। देख मैं अपनी अपनी ताई को छाड़ता है, मैं अपने चाचे को छाड़ता, देख प्रभु से लेकर के, देख मैं अपने बिजनेस को मैंने डाउन कर लिया, देख थोड़ा सा पॉलिटिकल कैरियर में थोड़ा फर्क पड़ रहा है तेरे कारण। पतरस ने कहा, प्रभु हम क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, कोई ऐसा नहीं। कि एक ऐसा है कि 99%, कि 99.9999%। परमेश्वर ने कहा, कोई, कहता कोई ऐसा नहीं, कोई भी आज कल आने वाला कल जिसने मेरे कारण अगर जमीन छोड़ी हो उसे 100 गुना ना दो। अगर उसने मेरे कारण लाइफ छोड़ी हो उसे 100 गुना ना दो। मेरे कारण रिश्तेदार छोड़े हो उसे 100 गुना लोग ना दो। मेरे कारण पैसा छोड़ा हो उसे 100 गुना ना दो। मेरे कारण इज्जत छोड़ी हो उसे 100 गुना ना दो। उसने कहा नो बॉडी, कहता कोई नहीं। उसने ये नहीं कहा तुम में से बहुत तेरे, कहता नो बॉडी। पतरस कहता कोई नहीं जिसने मेरे कारण घर, माता पिता, बाल बच्चे, खेत, व्यापार, पैसों को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए और साथ में बोनस पर लोग में अनंत जीवन वो ना पाएगा। कोई नो बॉडी। डर लगता है प्रार्थना करने, उसके लिए खड़ा रहने में डर लगता है। उसने कहा कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए कुछ त्याग दिया हो और इस समय 100 गुना ना हो। क्योंकि पतरस नंबर बनाने आया था परमेश्वर के सामने, तो उनकी तरह सारा कुछ हटता ही तेरे लिए, तो वो दावे साइड पे हो, ये 100 गुना मिलने वाला, तेरा ही फायदा है। हाँ? तेरा ही फायदा है, तू सेवा कर रहा है, तेरा फायदा है, एहसान मत कर। यीशु मसीह ने कहा पतरस तूने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया, इतना पाएगा, और जो कुछ छोड़ दिया वो तो 100 गुना पाएगा ही, और परलोक में क्या? अनंत जीवन। अरे किसको फायदा गिनाएंगे? किससे बहस करेंगे? परमेश्वर से कि हमने तेरे लिए ये छोड़ दिया। उसने कहा मैं 100 गुना दूंगा। सुलेमान का घर भवन से ज्यादा बड़ा, पता है क्यों? ये स्पिरिचुअल बात नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा तू मुझे बीट नहीं कर सकता, अगर तू मेरा बनाएगा तो तुझे बड़ा दूंगा। उसे तू बीट नहीं कर सकता, तुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए मैंने चर्चेस देखी, अमेरिका में देखी, और मैं हैरान हो गया सुन के। बड़ी चर्चेस अमेरिका में कर्जे के नीचे, चर्च बनाया डेब्ट के नीचे, कर्जा, EMI जारी। कारण क्या? वचन तो देते हैं, वो खुद नहीं बोलते। और ऐसी चर्चेस देखी जो बहुत स्मॉल है, 400, 500, और प्लेन्स होती है दूसरे पास से, प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स चलने वाले, उड़ने वाले। प्लेन होती है वो मिनिस्ट्री, लेकिन खुद होती है, और खुद भी ब्लेस है, दूसरे भी ब्लेस है, चर्च के मेंबर भी ब्लेस है, जबरदस्त रीति के साथ। वचन तो सुन लिया, पर अगर नहीं चले तो पब्लिक होने के बावजूद भी कर्जे में। हमारा चर्च में जो हो रहा है, जब आपको टेस्टिमनी दूंगा, अभी टाइम नहीं टेस्टिमनी देने, आप हैरान होंगे कि इस लेवल का काम बिना कर्जे के हुआ, 1 रुपए का कर्जा नहीं। हालेलुया। वो अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। आप पूछ लो खड़े रहने के तैयार है कि नहीं, ये सोच लो थोड़ा सा। वो तैयार है, वो अपनी वाचा को पूरा करेगा। आप तैयार है कि नहीं? हालेलुया। अब चलेंगे उसके वचन के ऊपर। बड़ी आज्ञाकारिता से पहले क्या, बड़ी गवाहियों से पहले क्या, छोटी गवाही देके वो जांचेगा, छोटी टेस्टिमनी देके आपको परखेगा, छोटी सी आज्ञाकारिता में चेक करेगा। आप बढ़ते जाएंगे, वो लेवल बढ़ता जाएगा, परीक्षा बढ़ेगी
तो उसके साथ ब्लेसिंग भी बढ़ेगी। अगर वो बड़े लेवल की है तो ब्लेसिंग 100 गुना बड़ी होगी। ओ आमीन। छोटा है। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो छोटी आज्ञाकारिता मेरे, खुदावन बड़ी ब्लेसिंग देगा तुझे। तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं डैनियल को पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर से बड़ा वो होता है डैनियल पढ़ने के बाद। ये कौन है? देखो पुराने नियम में एक व्यक्ति अन्य जातियों के पास रहता है, सारा दिन उन्हीं के चीजों चलती हैं आसपास उसके, और इसने परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है कि परमेश्वर इससे बातें कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, प्रकाशित वचन की बातें इसे बता रहे हैं, आने वाले टाइम बता रहे हैं, शैतान के भेद दे रहे हैं। कैसा होगा उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ? गिराने वाला आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए सदा के लिए। पक्का आत्मा स्पिरिट वो परमेश्वर की जो डैनियल के पास थी, जो पौलुस के पतरस के पास थी, वो सेम स्पिरिट उसी लेवल में आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करे यीशु मसीह के नाम। आमीन। बदल देता है वो हालात, बदल देता है, बदल देता है। परमेश्वर तो मेरे हालात को बदलने वाला परमेश्वर। मैं उस मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ जो तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं उस मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ पिता, जो तू मेरे जीवन को बदलने के लिए उपयोग कर रहा है। देता है वो हालात, बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, 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 मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। हालात बदल देता है, बदल देता है। हालात बदल देता है, बदल दे। शबियान दिगंबरा हसन। भूखों की तो भूख मिटाए, प्यास जाके प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। याद रखो, जो कुछ ये भेद मैं आपको दे रहा हूं, जो कुछ भी आप आराधना में परमेश्वर को बोलेंगे वही आपकी लाइफ में होता है। जैसा भी आप परमेश्वर को बोलेंगे कि वो कर सकता है, वो कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना असंभव काम क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर की एक खासियत है। आप जो भी आराधना में उसे कहेंगे कि वो कैसा है और वो क्या कर सकता है, आप उसे अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। अपने हाथों को उठा के फिर से बोलो, उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है।
जीवन तेरा पल बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। ये जाता है, ढल जाता है, गम खुशियों में ढल जाता है, ढल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। दान राशियाँ बैंक के द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। खाता धारक का नाम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री सोसाइटी, खाता नंबर 00718800000102, स्विफ्ट कोड YESBINBE, IFSC कोड YESB 000071। विदेश से दान राशियाँ भेजने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8264269562। आप अपनी दान राशियाँ हमें ICICI बैंक के द्वारा भी भेज सकते हैं। खाता धारक का नाम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री सोसाइटी, खाता नंबर 246805000116, IFSC कोड ICIC 00002468, ब्रांच नकोदर रोड, जलंधर। विदेश से दान राशियाँ भेजने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8264269562। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रार्थना लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0181520777। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.facebook.com/ankurnarula-ministries। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हमारा एड्रेस है www.twitter.com/apostleankur। आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब एड्रेस है
www.youtube.com/AnkurNarula Ministries। हमारी वेबसाइट है www.ankurnarula.org। हमारी लाइव प्रार्थना सभाएं देखने के लिए गूगल पर टाइप करें www.anugrah.tv। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय मूसा का उत्तराधिकारी। पहला वचन से, मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हुआ हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा, और जिस प्रकार यहोवा ने अमोरियों के राजा सिहोन की और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। Thank you, Jesus. तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, हे तो हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। 9 वचन से आगे, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 14 वचन से आगे पढ़िए।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तो यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर संसार बनाया। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर और हम विश्वास के लोग हैं, विश्वास की संतान, विश्वास के बेटे और बेटियां, और वो ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य ये वे जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुँह छिपा लूँगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियाँ और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियाँ हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुँह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठस्थ कर देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरी साक्षी ठहरे। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्ष्य देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने की मैंने उनसे शपथ खाई है तो पहुंच जाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। तब मूसा उस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका। तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की उस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दे, कि यह वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों की साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम यह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। मूसा का गीत। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के शरीर के अनुसार देखना होगा। मैं मेरी ओर ऐसे देखूंगा, उस ज्योति में कि छुटकारे के द्वारा मेरे साथ क्या हुआ। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं बस यही हूँ। यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी। मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। थैंक यू जीसस। अब हम पढ़ेंगे 32 अध्याय। लेकिन गौर करूंगा कि छुटकारे ने मेरे लिए क्या किया है। आमीन। ये पहली बात तो वो है जहाँ विश्वासी पर अधिकार करते हैं दोष। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय हम पढ़ेंगे पहले वचन से। हे आकाश, कान लगा कि
मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुँह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को बनाया स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नया नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भी भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं के उत्तम से उत्तम आटा भी और दुधाक रस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तो मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाए। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छुपा लूँगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों में के भीतर भय से। क्या कुंवारे और क्या कुंवारियाँ, क्या दूध पिता
हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूँगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूँगा, परंतु मुझे शत्रुओं को के छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनके चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देता। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी ही उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़ुए हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में सचेत और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। हालेलुया। ये वचन याद रखो। देखो क्या लिखा है, जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, इनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। हालेलुया। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारे आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। हालेलुया। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। अब आपको समझा, फिरौन को परमेश्वर ने 9 चमत्कार दे के फिर 10वें समय में क्यों हमारा इस्राएलियों को छुड़ा के लाया? क्योंकि वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति का घमंड छोड़ना नहीं चाहते। ओके, परमेश्वर भी उनको मौका देता है, चल भाई तू भी अपना दम दिखा, लगा अपना दम, जोर लगा अपना, और परमेश्वर बोलता है अब मैं तेरे से फाइट करता हूँ, तेरा वो जोर भी तोड़ देता हूँ। फिर वो दूसरे जोर लेकर आते हैं, फिर उसको भी परमेश्वर तोड़ देता है, फिर तीसरे जोर, उनके जितनी जोर है वो खत्म होने तक परमेश्वर उनको अपना कंप्लीट अस्तित्व नहीं बताता है कि वो कैसा परमेश्वर है। ओके, उनके मन के अंदर यही ख्याल होता है कि हम लोग अभी भी ऐसे ही करेंगे, अब भी और ज़्यादा करेंगे, अभी इससे ज़्यादा, अभी उससे ज़्यादा, अभी यहाँ से करेंगे, अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनल वर्ड जो है, आखिरी शब्द परमेश्वर का है। ओके, और उनके पावर जब हार रहे होते हैं तो उनकी अक्ल ये नहीं बताती है उनको, भाई तेरा पावर हार क्यों रहा है। ओके, चल तेरा ये वाला काम नहीं चला, दूसरा पावर तू लाया, वो भी हार रहा है। ठीक है, चल इसको निकाल दिया तूने, तीसरा लाया, वो भी हार रहा है। तुझे इतना तो सोचने की ज़रूरत है, तू हार क्यों रहा है। ओके, क्योंकि यहोवा ऐसा परमेश्वर है जिसके सामने कोई देवता खड़ा नहीं रह सकता है, कोई भी मूर्ति खड़ी नहीं रह सकती है, कोई भी मंत्र तंत्र श्राप रुक नहीं सकता है। जो यहोवा को पुकारता है वो आखिरी शब्द यहोवा से लेकर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, भारी विपत्ति को आप इनवाइट करते हैं जब आप ये रहस्य, ये भेद को समझ में नहीं लेते हैं। ओके, ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान थरथरा कर
सान धर कर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा और अपने बैरियों को बदला दूँगा। ठीक है, तो परमेश्वर का पावर देखो कैसा है। वो कहता है मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। कोई देवता अनंत काल का नहीं है, किसी के पास स्वर्ग नहीं है। ओके, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। ठीक है, तो ये यीशु मसीह हमारा स्वर्ग की ओर हाथ उठाया हुआ है और वो जीवित है अनंत काल के लिए। उसके पीछे हमको जीवन मिला है अनंत काल का। हम स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हैं और फिर यहाँ पर हम धमकी दे सकते हैं, यदि मैं बिजली के तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों के से बदला लूँगा और अपने बैरियों का बदला दूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का पावर है ये। ओके, उसके पास वो पावर है कि अगर उसने ठान लिया तो वो बहुत वाट लगा देता है सब कुछ का। ठीक है, तो वो इंसानों का नहीं, इंसानों के लिए नहीं कह रहा है। वो मनुष्य तो अपने पावर्स के घमंड में अंधा गूंगा बहरा हो चुका है, उसको तो परमेश्वर का एक स्पर्श काफ़ी है, वो सीधे रिपेंटेंस पश्चातापी हृदय में आने के लिए। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं मनुष्य के सुनते हुए आती है, वो दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ये चैलेंज सिखा रहा है कि क्या तू समझता है कि तू किसी के कहने के ऊपर आ जाएगा और मेरे लोगों को सताएगा? क्या लगता है तुझे मैं तेरा बदला नहीं लूँगा? ओके, क्या तू मेरा द्रोही नहीं है? क्या तू मेरा बैरी नहीं है? तुझे मैं छोड़ दूंगा? ऐसा परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा को बोलता है जिसको ये मनुष्य लेकर आते हैं। ओके, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि देखो अन्य जातियों को बोला है तुम लोग अपोज मत करो मसीहों का। ओके, क्योंकि तुम आनंद मनाओ मसीहों के साथ, क्योंकि तुम लोग चंगे होने वाले हैं उनकी प्रार्थना से, तुम लोग आशीषित होने वाले हैं उनकी प्रार्थना से, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया आने वाली है उनकी प्रार्थना की वजह से। इसके लिए हे जाति जाति के लोगों, ओके, वो परमेश्वर के प्रजा के साथ आनंद मनाओ। ठीक है, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा। ओके, चाहे वह अनबिलीवर रहे चाहे बिलीवर रहे, अगर उसके दास प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना मानी जाती है। ओके, और परमेश्वर का हाथ उठ जाता है। जहाँ पर भी बिलीवर आवाज़ लगाता है परमेश्वर को प्रार्थना से, वो बात इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि अंधकार के जगत के अंदर उस बात को सिर्फ शैतान की आत्माएं समझ सकती है, मनुष्य नहीं समझ सकता है। ओके, मनुष्य को उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो मनुष्य केवल अपने भूख प्यास के वजह से, अपने जो मांस और लहू का जो लालसाएं है, ओके, उसकी वजह से वो कैसे भी करके पावर्स में बने रहने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पावर्स मतलब उसके दुष्ट आत्माओं में बने रहना चाहता है, लेकिन वह दुष्ट आत्मा इस रहस्य को जानती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो वो दुष्ट आत्मा डरती है ऐसे वचनों से, क्योंकि उनको मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो मनुष्यों को छोड़कर भागने में ही उनको आनंद आता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर रुकने से हमारी हालत खराब कर देंगे ये। ओके, तो वो पावर्स रुक नहीं पाते हैं। वो पावर्स चाहे जितना कुछ अपने आप को बनाए, क्योंकि परमेश्वर कहता कोई देवता मेरे सामने नहीं रुक सकता है। तो पावर्स क्या है? देवता ही है। ओके, पावर्स क्या है? मूर्तियों से, देवताओं से, ओके, उनको चढ़ाए हुए बलिदानों से मांस चढ़ाया रहता है, बलिदान चढ़ाया रहता है, लहू चढ़ाया होता है। ओके, उसी में से वो आत्माएं आती है। वो ये पावर्स से मनुष्य की जो अन्य जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वो पावर्स के लिए परमेश्वर कहता है कोई देवता मेरे सामने नहीं रुका है, कोई पावर, कोई शक्ति, कोई आत्मा मेरे सामने बल नहीं दिखा सकता है। ये परमेश्वर उन पावर्स को, उन शक्तियों को, उन देवताओं को, उन मूर्तियों को वो
आत्माओं को परमेश्वर ये वचन दिखाता है। ओके, और ये वचन जब आप बोलते हो तो आप उनको आईना दिखा रहे होते हैं और वो पावर्स टूटते हैं, क्योंकि वो पावर्स यानी वो अशुद्ध शक्तियाँ हैं, वो इस बात को जानती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। मूसा के अंतिम निर्देश। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। ओके, तो परमेश्वर के पीछे चलना ये मूर्खता नहीं है। ओके, परमेश्वर का डर मानना मूर्खता के लिए नहीं बोला गया है। ओके, परमेश्वर का वचन मानना, परमेश्वर के वचनों के अधीन रहकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जगह ज़मीनों को तैयार करना। परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऐसे व्यर्थ जाने के लिए नहीं कहा है। ओके, तुमको वो इसीलिए करना है क्योंकि वही को जीवन कहा जाता है। ओके, जो अंधकार के शक्तियों का इस्तेमाल करके जीवन जी रहे हैं, वो अभी तक जीवन को जाने ही नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है, वो मृत्यु को जी रहे हैं। ओके, वो मृत्यु को चखे हुए हैं, मृत्यु के स्वाद उन पर ठहरा हुआ है। ओके, मृत्यु की भाषा वो समझते हैं, मृत्यु के चाल चलन को वो पसंद करते हैं। ओके, और मृत्यु के साथ संगति में ही वो उठना बैठना भी अपना एक घमंड मानते हैं। ओके, तो उनकी दुनिया मृत्यु की है, जो अशुद्ध आत्माओं के साथ जीना पसंद करती है। ओके, जो अलग अलग प्रकार के भक्ति करके उनके संगति में बैठते उठते वो पसंद करते हैं, वो मृत्यु की प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रही, जो वचन कह रहा है। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर कहता है मुझे पापियों से नफरत नहीं है, पाप से नफरत है। ओके, क्योंकि मनुष्य को ऐसा मृत्यु का प्रदेश नहीं देना था। परमेश्वर ने प्रदेश में गया कौन? खुद आदम और हवा अपनी मर्जी से मृत्यु को पसंद किया। ओके, तो मृत्यु को पसंद करने वाले मनुष्य को परमेश्वर ने मृत्यु के लिए नहीं बनाया था, जीवन के लिए बनाया था, है ना। लेकिन ये मृत्यु का हिस्सा किसको था? शैतान को था। ओके, और मनुष्य ने मृत्यु को पसंद कर लिया तो शैतान को पसंद कर लिया। ओके, तो शैतान को क्यों पसंद किया? क्योंकि उनके शरीर की जो भी वासनाएं हैं, जो भी हैं, ओके, घमंड है, जो लालच है, वो सब उनको तृप्त होके मिलती है। ओके, क्योंकि वो एरिया ऑफ लाइफ जो है वो शैतान ने अब आदम और हवा से ले लिया, और आदम और हवा के ऊपर से लेकर जो पीढ़ी आने लगी है वो पीढ़ी के ऊपर वो राज्य कर रहा है। ओके, तो अब शैतान की जगह पे लोग इतने ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं कि वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके बारे में क्या करें अभी। ओके, इसके बारे में हम कैसे फैसला लें, इसके बारे में हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिए। ओके, वो समझ नहीं पा रहे इसके बारे में। ठीक है, तो इतना गहरा असर चढ़ चुका है मृत्यु का जगत के ऊपर। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करना पड़ा हम मनुष्य जाति के समझ के अंदर। ओके, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति से दूर नहीं था। परमेश्वर का भय मनुष्य को जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। ओके, तो प्रभु यीशु परमेश्वर का भय देता है। ओके, तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मनुष्य से अलग नहीं है, लेकिन उनकी समझ के अंदर ठहरना, ओके, ये मनुष्य नहीं कर पाता है। वो शैतान के पीछे चला जाता है। ओके, वो शैतान के पीछे चला जाता है, उसको लगता है शैतान ही सब कुछ है, और ये शैतान की जगह फिर हो जाती है। और इसके लिए प्रभु यीशु मनुष्य की समझ को खोलने के लिए आया। ओके, शैतान मनुष्य की समझ बन रहा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह शैतान ने जो समझ ले लिया है मनुष्य के अंदर, उस जगह में अब प्रभु यीशु क्या है वो समझाने के लिए समझ को खोल रहा है।
ओके, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभु यीशु ने समझ में खोल दिया है। अब हम समझते हैं अंधकार क्या है, उजियाला क्या है। तो अंधकार मृत्यु का प्रदेश है और उजियाला परमेश्वर का जगत है, और अंधकार मृत्यु है, परमेश्वर जीवन है। तो अगर अंधकार में कोई जी रहा है तो उसको जीवन मालूम ही नहीं है। ओके, इसके लिए हमको यीशु मसीह के अनुसार जीने की ज़रूरत है, ताकि जीवन क्या है वो मृत्यु के प्रदेश में बैठे हुए लोगों को मालूम पड़ेगा। समझा? तो इसके लिए हमको अपने चाल चलन, अपने बोल चाल में, अपने उठने बैठने तौर तरीके में हमको अंधकार के ऊपर प्रबल होकर जीना पड़ता है, और हमें प्रभु यीशु कहता है उस प्रकार से जीना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर जो है वो ज्योति है, वो जीवन है, उसका राज्य हम में से हम यहाँ पर रख सके, लोगों के लाइफ के लिए हम फायदेमंद हो सके। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी आयु के दिन बहुत एक मिनट। हाँ, हम गीत के इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। मूसा के अंतिम निर्देश। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के साथ मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारिम पहाड़ के नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ तो अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमें इन वचनों के अधीन लाया, हमें सिखाया, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरीनेस के लिए तैयार किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा धन्यवाद स्वीकार करने की हम आपसे विनती करते हैं। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। क्या है देखेंगे। Romans 3 chapter 13 verse 19 verse, Psalms 95 96 chapter, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 13 वचन से 19 वचन, भजन संहिता 95 से 96 वचन अध्याय हम पढ़ेंगे अकेले में, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में। जैसे ही हम व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे, इसमें से हमारे साथ परमेश्वर जो अगुवाई करना चाहेगा, बातें करना चाहेगा, हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे और परमेश्वर चाहता है वैसा सुधार भी हम ग्रहण कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं सभीयों ने ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहते हैं, इसीलिए अकेले में बैठकर हम परमेश्वर के सुनना चाहते हैं। आप जैसा पवित्र आत्मा आपको कहे वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाना चाहिए। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।